کی زندگی کا مقصد کیا تھا، کیا ہے، کیا رہے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کس تعلیم کو انہوں نے جاگزی کیا ہے؟ کس تربیت کو انہوں نے دیا ہے؟ کس کتاب کو انہوں نے عطا کیا ہے؟ کس کیریکٹر کو انہوں نے پیش کیا ہے؟ وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور وہ مقصد محبت ہے، اور اس محبت کے سرچشمہ جیتی جاگتی تصویر، جیتا جاگتا ماحول ولی اللہ کی صورت میں، اولیاء کرام کی صورت میں، ولی اللہ کی صورت میں یہ بارگاہ ہے، ملک شاہ کی بارگاہ ہے۔ آج محبت کا چراغ یہاں روشن ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے اتحاد و اتفاق اور محبت کی بات کر رہی ہے۔ زندہ لوگ جو ہے محبت کے چراغ کو روشن کرتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ نفرتوں کی آگ جو ہے جلا رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھیے دنیا سے جانے کے بعد بھی ملک شاہ کا کردار، کیریکٹر اور دربار آپ کی بارگاہ، یہ اعلان آپ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم سچ والوں کے ساتھ ہیں، ہم محبت کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اولیاء اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ کی تعلیمات کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو اس سے اخلاق پیار پیش کرتے ہیں، اور جب اخلاق پیار اور محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے تو بھائی چارگی ہوتی ہے، ملت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ملک طاقتور ہوتا ہے، ہم جو ہے مضبوط ہوتے ہیں، دنیا میں ایک مقام ہوتا ہے، اور اس مقام کو، اس جگہ کو ہندوستان کہتے ہیں، جہاں پر جو ہے خواجہ اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے چراغ کو روشن کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہندوستان میں کتنی ملتوں محبت کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، اور اللہ و رسول کے پیغام کے حوالے سے ایک جو ہے ایک ادنا شخص، ادنا لوگوں سے بھی کوئی فرق، کوئی تفریق مذہب اسلام نہیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام ادنا اور اعلیٰ کی تعلیم ہی نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام جو ہے نبی کی تعلیمات جو ہے یکسانیت کی تعلیم ہے، مساوات کی تعلیم ہے، برابری کی تعلیم ہے، ملت و محبت کی تعلیم ہے۔ تو حضرات گرامی، جب ملت ہوگی تو ہم حقیقت کو سمجھیں گے، جب ملت ہوگی تو ہم سچائی کو سمجھیں گے، بھائی چارگی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اخوت و رواداری کے ساتھ جو ہے ہم مضبوط قدم جب اٹھائیں گے تو ہماری محبت غالب آئے گی، ہم حق کو پہچان جائیں گے۔ جب ہم ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں گے تو پھر مذہبی اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہم سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہو جائیں گے، تو ہم پھر بزرگان دین کی تعلیمات سے آشنا ہو جائیں گے۔ آج کیا ماحول ہے کہ اتنے دن گزرنے کے بعد جو ہے آج جو ہے یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو بھیڑ ہے، جو مجمع ہے، جو لوگ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سچے محبت کرنے والے ہیں، یہ سچے دیندار ہیں، یہ سچے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں۔ اگر ہم کیریکٹر پیش کریں گے، کردار پیش کریں گے، اگر ہم زندگی پیش کریں گے، اگر ہم تعلیمات پیش کریں گے، اگر ہم نبی کے طریقے پر عمل کریں گے تو پھر زندگی میں تو لوگ مانیں گے ہی، بعد زندگی بھی ہماری قبر پہ لوگ پھول کی چادر جو ہے اور پھول کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آج ثبوت شاہد ہے، آج یہاں پر ہر قوم کے لوگ جو ہے بس اس لیے یہ چادر پیش کر رہے ہیں، یہ محبت پیش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی
जिंदगी से, इनकी तालीमात से नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की खुशबू आ रही है। तालीमात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जागृति हो रहा है। ये औलिया अल्लाह की तालीमात है। वरना आप चाहे दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लो, चाहे हिंदुस्तान की हुकूमत में आ जाओ, तुम्हें हर कौम के लोग सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि तुम मोहब्बत रसूल को न अपना लो, जब तक कि तुम तालीमात रसूल को न अपना लो, जब तालीमात रसूल को अपना लोगे, जब तुम किरदार और कैरेक्टर में आ जाओगे, जब तुम गरीबों के साथ आ जाओगे, जब तुम यतीमों के हिमायत में खड़े हो जाओगे, जब तुम बेवाओं के हिमायत में खड़े हो जाओगे, जब तुम मिस्कीन गरीब कमजोर लाचार बेघर बेसहारा के साथ मोहब्बत पेश करोगे, तो लोग कहेंगे कि यही इस्लाम है, यही दीन है, यही मजहब है, यही पैगंबर का चाहने वाला है, यही कुरान पढ़ने वाला है, यही नमाज पढ़ने वाला है। लेकिन अगर हमारे कैरेक्टर में किरदार रसूल का आईना न हो, हमारी जिंदगी में तालीमात रसूल की झलक न हो, हमारे कैरेक्टर में गरीबों के साथ रवादारी न हो, हमारी जिंदगी में बेवाओं के साथ मदद न हो, हमारी जिंदगी में बेघरों को सहारा न हो, हमारी जिंदगी में भूखों पर मेहरबानी न हो, हमारी हुकूमत में अगर बच्चा दूध के बगैर मर रहा है, हमारी हुकूमत में अगर लोग लड़ रहे हैं, हमारी हुकूमत में मजहब की लड़ाई है, हमारी हुकूमत में फर्क लड़ रहा है, हमारी हुकूमत में मस्जिद मंदिर का इख्तिलाफ है, हमारी हुकूमत में मजार और मस्जिद के नाम पर जंग है, तो मालूम ये हो रहा है कि हम हुकूमत सही चला नहीं पा रहे हैं, हम पैगाम सही दे नहीं रहे हैं। अगर हम मुल्क के राजा हैं, अगर हम मुल्क के बादशाह हैं, तो हमें सबको मिला के चलना होगा, हमें मिल्लत का पैगाम देना होगा, हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई से निकलना होगा, हमें हक के साथ आना होगा, मिल्लत और मोहब्बत का चिराग रोशन करना होगा। जब मोहब्बत का चिराग हम रोशन करेंगे, जब मिल्लत का चिराग हम रोशन करेंगे, तो कोई मजहब जो है किसी मजहब को हलाक करने की बात नहीं कर रहा है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक चूटी पे भी जुल्म करने की तालीम नहीं है। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, इंसान की बहुत बड़ी हकीकत है। माना के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हजरात गिरामी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चाहे यहूदी हो, नसारा हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो कुरान का मुताला करे, हदीस का मुताला करे, बेहतरीन आलिम दीन को सुने। मैं मुस्तनद मुकम्मल बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर किसी फर्द के साथ दुश्मनी नहीं है, बल्कि मोहब्बत का चिराग अगर इस जहान में, इस कायनात पर किसी ने रोशन किया है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब आप तारीख के आईने में जाओ, उस वक्त जाओ, उस दौर में जाओ जब जो है, जब औरतों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा था, जब औरतों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जब बेटियों को करगोर दिया जा रहा था, जहालत का वो माहौल था कि दुनिया औरतों को हवस का शिकार समझ रही थी, दुनिया औरत को मकाम नहीं दे रही थी, दुनिया उसे अपनी अय्याशी का सामान समझ रही थी, दुनिया बेटी पैदा होने पर जिंदा दफन कर रही थी। तो तने तन्हा आवाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि इन बेटियों को न जलाओ, इन्हें जिंदा दफन न करो, इन्हें जिंदगी दो। ये रहमत है, ये निजाम दुनिया चलाने के लिए अल्लाह की बेहतर तखलीक है, अल्लाह की बेहतर मखलूक है। अगर औरतें नहीं रहेगी, दुनिया की नस्लें रुक जाएगी, आबादियां नहीं बढ़ेगी, न आबादी बढ़ेगी, न खुदा की इबादत होगी, न बंदगी होगी, न रसूल से मोहब्बत होगी। औरतें सलामत है, खुदा की तालीमात सलामत है, तो औरतें नकाह में आएगी, उनसे नस्लें पैदा होगी, उनसे मुजाहिद
पैदा होंगे वो दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देंगे, वो दुनिया को जुल्मत से निकालेंगे, वो दुनिया को तालीमात पैगंबर आजम के रोशनी में ये दर्श देंगे कि तुम इसे जलाओ नहीं, ये किस्मत की बात है, ये मुकद्दर की बात है। उस तारीख को आप दोस्तों हवाले से पढ़ो। एक वक्त ऐसा था इसी हिंदुस्तान पर कि अगर शौहर मर जाता था तो उसी के चिता पर जो है बीवी को जला दिया करते थे। वही हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन इस्लाम आया है, नबी की तालीम आई है, मुकद्दस किताब आया है, सरकारे दो आलम की तालीम आई है। तो ये जादूजी किया गया है कि मरने वाला अपनी मौत से मर गया है, इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है, इसमें बीवी अभागन नहीं है। उस बीवी को जलाने से बचाने का काम जो है पैगंबर आजम की तालीम ने दिया है। उस बीवी को बचाने का काम जो है, उस बेटी को बचाने का काम जो है, ये अल्लाह ने तालीम दिया है। आज यही वजह है कि आज इस दरबार पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों की हाजिरी है, इसलिए कि हक बोलने वाला है, सच बोलने वाला है, मिल्लत का चिराग रोशन करने वाला है, मोहब्बत का चिराग रोशन करने वाला है। तो हक पर सारा मामला है, तो हमें हक का साथ देना होगा। अगर कोई कहे कि दारुल उलूम के दिया शमसुल उलूम अफजल शमसी ने तामीर किया है, लोग इतराज कर देंगे, इसलिए कि लोगों को मालूम है कि दारुल उलूम के दिया शमसुल उलूम अब्दुल शमसुल मशाइख चूफी शाह शमसुद्दीन खा हमें है रहमत रिजवान ने बनाया है, इसलिए बनाया है कि क़यामत जो है मिल्लत और मोहब्बत की तालीमात होती रहे। क़यामत जो है शेराने से ऐसे आलिम दीन निकले कि मुल्क की मोहब्बत को, मुल्क की तालीमात को, मुल्क की नफरत को बुझाकर जो है तालीमात पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह का चिराग रोशन करे। तो हजरात गिरामी, ये हक का ऐलान है, जब भी हक की बात आए तो तुम्हें हक बताना होगा कि ये इदारा शमसुल मशाइख का है। शमसुल मशाइख का एक बहुत बड़ा मिशन रहा था, एक बहुत बड़ा मिशन है कि जाओ, ये इदारा इसलिए है कि अगर इलाके में कोई बदगुमानी हो, इलाके में कोई मामला हो, इलाके में कोई बदजनी हो तो उसे दुरुस्त किया जाए। खानकाह रक्सा शरीफ से लोग आते हैं और आने के बाद जो है नज़्म और नस्क की बात करते हैं। उसी नज़्म और नस्क के साथ जो है आखिरी ऐलान मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि मरकज से मैं ताल्लुक रखता हूँ, सरकार शमसुल मशाइख के इदारे से ताल्लुक रखता हूँ, सरकार शमसुल मशाइख के मिशन से मैं ताल्लुक रखता हूँ। उनके मिशन में ये बताया गया है, माना के ये मजार है, माना के ये वली अल्लाह की बारगाह है, लेकिन यहाँ की मोहब्बत का एक दायरा है, यहाँ का एक निजाम होना चाहिए, यहाँ का एक दस्तूर होना चाहिए, वरना आप तो जहालत में निकल जाएंगे। एक जिम्मेदार मौलाना अब्दुल मन्नान साहब है, आप चादर पेश कर रहे हो, झंडा क्यों ले जा रहे हो? अभी चादर का जवाब हम लोग दे रहे हैं, अभी फूल का जवाब हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जो चाहे वो नहीं ले जा सकते हो। झंडे को बाहर रखो, अपने काम झाम को बाहर रखो, इन औरतों को बाहर से बाहर पर रखो, किसी जाने का कोई जवाब नहीं है, मकाम से बाहर रहिए, बाकी नापाकी का ख्याल करिए, नबी की हदीस का ख्याल करिए, इस बाग की अजमत का ख्याल करिए। आप जहां चाहेंगे वहां इस्तिंजा कर ले, जहां चाहे वही नापाकी कर ले। तो औरतों का एक हद है, एक पर्दा है, मर्दों के साया निशान औरत नहीं है, मजार है, वली का घर है, लेकिन एक आदाब है, एक हदफ है, एक तंजीम है, एक दस्तूर है। हम जो चाहेंगे वो नहीं कर लेंगे, वरना ये उलमा जिम्मेदार होंगे। अगर हम आज हक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बदनज़मी होगी तो बरोज़े महशर अल्लाह हमें पकड़ेगा। क्या अफजल शमसी, वहां तक मैंने तुझे रसाई किया था, वहां तक मैंने तुझे पहुंचाया था, इसलिए कि खुदा तो है मुस्तफा जाने रहमत की जबान में बोलता है, खुदा जो है औलियाए किराम की जबान में बोलता है, खुदा जो है उलमाए किराम की जबान में बोलता है। तो जो आज उलमाए किराम बोल रहे हैं, ये उलमाए किराम नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान है, ये खुदा का पैगाम है कि इस मजार के तकद्दुस को पामाल न होने दिया जाए, मजार के मैसेज को गलत न होने दिया जाए। एक तंजीम बनाइए, जब भी कोई प्रोग्राम करना हो, मैं दूर हूँ, एक जिम्मेदार आलिम, एक जो है
सादगी के साथ जो है बेहतरीन आलिम आपके ख्याल में रहता है, जिससे मुराद मेरी मौलाना अब्दुल मन्नान साहब है। आप इनसे पूछिए कि शरई तरीका क्या है, मोहब्बत कहाँ तक पेश किया जाए, इख्वत और रवादारी कहाँ तक पेश किया जाए, मजहबी क्या उसूल है, सुन्नत क्या है, शरीयत क्या है। अगर सुन्नत और शरीयत की पासदारी नहीं है तो ये तो एक वली का बारगाह है। सरदारे औलिया गौसुल आजम की बारगाह क्यों न हो, लेकिन गौसुल आजम की बारगाह से भी मुस्तफा जाने रहमत ही के दस्तूर बताए जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का ही पैगाम गौसुल आजम की बारगाह से दिया जाएगा। चाहे बारगाह धावा शरीफ से हो, चाहे बारगाह रक्सा शरीफ हो, चाहे बारगाह जुल्काही शरीफ हो, चाहे बारगाह कछोचा शरीफ हो, चाहे बारगाह बगदाद शरीफ हो, चाहे गौसुल आजम की तालीमात है। ये सारी तालीमात जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात है। ये सारे औलियाए किराम जो है, ये सारे औलियाए किराम जो है नबी की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। हमें अपने कैरेक्टर और किरदार से नफरत को बुझाना है, मोहब्बत का चिराग जलाना है, मजार की अजमत को बताना है, नज्म दस्तूर को समझना है और उसी नज्म दस्तूर के मुताबिक जो है हमें उर्स व फातिहा करना हो। वरना ऐसा न हो कि हम आए हैं सवाब की गरज से और अजाब में मुब्तला हो जाए। ये औलिया अल्लाह बड़ी बाकरामत होते हैं, बड़ी बाअसर होते हैं। इनकी निस्बत से दुआएं बारगाह इलाही तक पहुंचती है। अगर इनकी बारगाह में गुस्ताखी हो जाएगी तो वो लोग खुदा न करे हलाक हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि औलिया अल्लाह जो है ये मामूली बात नहीं है। औलिया अल्लाह का मकाम जो है मुनफरिद तरीका से कलाम इलाही में मौजूद है। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई हुज़्न व मलाल है, बल्कि इनकी बारगाह से हमें मोहब्बत, नज़्म, दस्तूर, मिल्लत, मोहब्बत के चिराग को आया करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मोहब्बत को कबूल फरमा के नेमल बदल अता फरमाए। हम सब तमामी नबी के चाहने वालों को, तमामी मोमिन मोमिनीन को, तमामी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वालों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की और तमाम लोगों को चलने की दावत देने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।